Good morning, class. We are going to start with the topic sex determination in humans. Before we start, first revise our previous class content. What are these? First is Mendel's law of inheritance, in which Mendel chose 7 contrasting characters. Second, inheritance of one gene. What is the step of inheritance of one gene? First, he emasculates the flower. Then he hybridizes tall with dwarf plant. And what are the result in F2 generation? The result which he observed, 3 is to 1 in ratio, that is 3 tall and 1 dwarf plant. Now what are monohybrid cross? He cross in between single trait, that is tall and dwarf. In F1 generation he observed that all plants are tall. In F2 generation the result was 3 is to 1, in which 3 plants are tall and 1 plant are dwarf. Now what is test cross? Test cross are used to test an individual genotype by crossing it with an individual of a known genotype, that is homozygous recessive. He give two law of inheritance. First is law of dominance and law of segregation. The trait which appear in F1 generation are dominant, so he gives the law of dominance, and in F2 generation recessive character becomes segregate and reappear in F2 generation, he give the law of segregation. Incomplete dominance. In incomplete dominance, in F1 generation, dominant character are shown is totally incomplete. And what are codominance? In offspring, both character are seen, whether the character are parent 1 should be parent 1 and parent 2. Now inheritance of one gene, inheritance of two gene. In inheritance of two gene, Mendel crossed pea plant that differ in two characters, that are round yellow and wrinkled green. Law of independent assortment, it is equivalent to the law of segregation. Now chromosomal theory of inheritance, it was given by Hugo de Vries, Correns and von Schirmack in 1900. In 1902, Sutton and Boveri discovered chromosome, and he recall the Mendel's law of inheritance. एक्चुअली जो मेंडल ने फैक्टर कहा था, अकॉर्डिंग टू द वॉटसन, Walter Sutton and Boveri, actually those factors are equivalent to the chromosome which are segregated in F2 generation. Now linkage and recombination. In linkage, Morgan discovered the linkage and recombination phenomena in Drosophila. According to him, genes are very close. If genes are very close to each other, there is no recombination possible, or percentage of recombination are very less. Whether in if though genes which are present in long distance, there is the process, there is possibility of crossing over, so the recombination is possible. He studied in Drosophila. He is also known as father of linkage. Now sex determination. Sex determination was discovered by Haeckel in 1891. According to him, he was discovered sex determining chromosome in insects.
he give three types of sex determining XXX0 in insect, XXXY type in humans, and ZZZW type in birds. Now today topic is sex determination in human. What is sex determination? In previous class we have already discussed that कि if male chromosome sex determining chromosome is XY and female sex determining chromosome is XX. During gamete formation, because the male has two type of chromosome, that is one X and one Y, in female there is only X is present, so the probability of formation of two type of chromosome occur only in male, whether in female there is no probability, because there is a single type of sex determining chrome is present, that is X. तो मेल में क्या होता है? मेल में दो तरह के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक्स वाई और एक्स एक्स. In male there is two types of chromosome, that is one is X and second is Y chromosome. In female there is only one type of chromosome, that is both are X chromosome. So the gamete formation is in male, one sperm should contain one X chromosome and second sperm should contain one Y chromosome, but in female egg always contain one X chromosome. तो क्या होता है जब फ्यूजन होता है दोनों गैमेट का, स्पर्म का विद द एग, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे 50% पॉसिबिलिटी होती है कि वो फीमेल का एग से फर्टिलाइज करेगा और 50% पॉसिबिलिटी है कि मेल का वाई फीमेल के एग से फर्टिलाइज करेगा. तो यहाँ पे 50% चांसेस सिर्फ रहते हैं कि 50% ऑफस्प्रिंग फीमेल हो सकते हैं और 50% ऑफस्प्रिंग मेल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर in the case of ovum fertilized with a sperm carrying X chromosome, the zygote develops into the female. अगर sperm X containing sperm और sperm X containing X से फर्टिलाइज करेगा, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि सिर्फ केवल फीमेल जो जाइगोट डेवलप होगा वो फीमेल में डेवलप होगा. whereas when Y chromosome carrying sperm fertilize with the X carrying egg, then the offspring will be converted into the male. तो 50% चांसेस होंगे यहाँ पे. तो जो जितनी भी प्रेगनेंसी होगी फीमेल की, वहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि आइदर अ मेल चाइल्ड डेवलप और आइदर अ फीमेल चाइल्ड डेवलप. Now we move to the next topic, that is mutation. What is mutation? Actually, it is a change in genotype and phenotype. What are the cause of mutation? There is sudden change in gene, or if there is loss in DNA sequence, means अगर यहाँ पे लॉस हो जाए इस एक DNA पार्ट का, और इफ इट इज़ अ गेन, अगर यहाँ पे DNA है और यहाँ का DNA टूट कर ब्रेक होकर
सेकंड डीएनए पर आकर जुड़ जाए तो ये यहाँ पे गेन हो जाएगा और इंसर्शन हो जाएगा डीएनए सेगमेंट का। और हो सकता है कि एक डीएनए सीक्वेंस पे जो बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसमें से किसी एक बेस पेयर का या तो डिलीशन हो जाए या इंसर्शन हो जाए या पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि अगर एक बेस पेयर अगर चेंज होगा अगर वहाँ पे ग्वानिन की जगह साइटोसिन या थायमिन आ जाए तो इसी को सिंगल बेस पेयर चेंज कहेंगे, क्योंकि सिर्फ एक बेस पेयर का चेंज हो रहा है तो पूरी की पूरी डीएनए सीक्वेंसिंग चेंज हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि 3 बेस पेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक अमीनो एसिड के कोडिंग में। 3 बेस पेयर रिस्पॉन्सिबल होंगे एक अमीनो एसिड के कोडिंग में। तो जब एक चेंज होगा या एक डिलीट हो गया होगा तो 3 की शिफ्टिंग हो जाएगी, तो इसी को फ्रेम शिफ्टिंग भी कहते हैं। फ्रेम शिफ्टिंग भी कहेंगे या तो डिलीशन कहेंगे, इंसर्शन कहेंगे। तो ये कॉज हो जाते हैं म्यूटेशन के। फॉर एग्जांपल, या तो वहाँ पे सडन चेंज हो, डीएनए में सडन चेंज हो, या डिलीशन हो, इंसर्शन हो। इंसर्शन मीन्स किसी और डीएनए का पार्ट टूट के दूसरे डीएनए पे आके जुड़ जाए तो इंसर्ट हो जाएगा। डुप्लीकेशन मीन्स एक डीएनए सिंथेसिस या रिप्लिकेशन के टाइम जब 2 डीएनए का फॉर्मेशन होगा, ये पूरा का पूरा सेट स्पर्म में जब ट्रांसमिट हो जाएगा तो इसी को डुप्लीकेशन कहेंगे। या तो डुप्लीकेशन हो या सिंगल बेस पेयर चेंज हो, तो ये सभी कॉजेज होते हैं म्यूटेशन के। और जितने भी और कुछ सब्सटेंस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कुछ सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है म्यूटेशन के लिए और वो स्टिमुलेट कर रहे हैं डीएनए को फॉर चेंज इन देयर बेस पेयर, तो उन्हें म्यूटाजेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल यूवी रेडिएशन, ये भी एक सिंगल बेस पेयर को चेंज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। Some mutagens are क्लोरोफ्लोरो एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी क्लोरोफ्लोरो एजेंट है, चाहे परफ्यूम हो, परफ्यूम में भी क्लोरोफ्लोरो एजेंट्स होते हैं और टैल्कम पाउडर में भी होते हैं। ये भी म्यूटेशन को या डीएनए को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि वहाँ पे इंसर्शन, डिलीशन या सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है। अभी सिंगल बेस पेयर चेंज का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह अमाइनो एसिड का वैलिन अमाइनो एसिड की कोडिंग होने लग जाती है, जिससे कि आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव से चेंज होकर सिकल शेप्ड हो जाता है और ये ब्लॉक करने लग जाता है ब्लड फ्लो को, ब्लड वेसल्स में आके कोएगुलेट करने लग जाता है, जिससे कि प्रॉपर वे में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है और प्रॉपर वे में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र, क्योंकि आरबीसी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में ब्लॉकिंग हो जाती है और प्रॉपर वे में जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कई रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ भी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। व्हाट आर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स? Disorders are inherited has been prevailing in the human society since long, लंबे समय से चला आ रहा है। This was based on the heritability of certain characteristic features in families. After the rediscovery of
Mendel's work, The Practice of Analyzing Inheritance Pattern of Traits in Human Beings, began. तो मेंडल्स ने जब वर्क किया और उनके वर्क की रीडिस्कवरी हुई तो उससे पता चला कि जनरेशन टू जनरेशन जैसे कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है वैसे ही सेम डिजीज का भी ट्रांसमिशन होता है और डिसऑर्डर का भी ट्रांसमिशन होता है जनरेशन टू जनरेशन। तो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर थे ये दो पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। एक था मेंडेलियन डिसऑर्डर, दो पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, एक था मेंडेलियन डिसऑर्डर और सेकंड था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हम इस चार्ट से समझ सकते थे व्हाट आर द मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड व्हाट आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ये दो टाइप के थे। पहला जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स, जब वहाँ जीन का म्यूटेशन ऑटोसोम्स में हो रहा था क्योंकि ऑटोसोम क्रोमोसोम 22 पेयर्स होते हैं और 1 पेयर ओनली सेक्स क्रोमोसोम। तो जितने भी ऑटोसोम थे अगर वहाँ पे कोई म्यूटेशन हो रहा था तो उसी को ऑटोसोम म्यूटेशन कहा गया। फॉर एग्जांपल है इसका सिकल सेल एनीमिया। ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव ट्रेट है जिसमें कि अगर जीन के दोनों एलील जब तक अफेक्टेड नहीं होंगे तब तक वो इंडिविजुअल भी अफेक्टेड नहीं होगा। अदरवाइज अगर एक एलील अफेक्टेड है और एक एलील सिकल सेल एनीमिया शो कर रहा है तो वो इंडिविजुअल एज ए कैरियर शो करेगा, मतलब कि वो डिजीज़ का सिर्फ एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र करेगा, वो खुद अफेक्टेड नहीं होगा। और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स में देखा गया कि ये डिसऑर्डर से रिलेटेड एलील सेक्स लिंक्ड थे और सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया इज आल्सो अ रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। जब तक ये दोनों एलील पे सेम वही मेंडेलियन इनहेरिटेंस को ये भी फॉलो करता था, जब तक दोनों ही एलील अफेक्टेड नहीं होंगे या हीमोफिलिक नहीं होंगे तब तक ये इंडिविजुअल को अफेक्टेड नहीं करेगा। अदरवाइज अगर सिर्फ एक एलील प्रेजेंट है इंडिविजुअल में तो वो एज ए कैरियर शो करेगा, एज ए कैरियर होगा इस डिसऑर्डर का, वो ट्रांसमिट सिर्फ करेगा हीमोफीलिया को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। Now we move to the chromosomal disorder. What are these? These are also autosomal disorder or sex chromosomal disorder. तो autosomal disorders ऑटोसोम में प्रेजेंट होंगे, whereas chromosomal disorder X linked disorder ये सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। इसके एग्जाम्पल थे डाउन सिंड्रोम जिसमें कि 21 क्रोमोसोम जो कि ऑटोसोम क्रोमोसोम है, यहाँ पे एडिशन हो जाता है एक क्रोमोसोम का, मीन्स कि ट्राइसोमी हो जाती है, एक एडिशन हो जाएगा क्रोमोसोम का क्योंकि क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर एक क्रोमोसोम और आ गया तो एक सेट और आ गया तो वहाँ पे डुप्लीकेशन हो गई क्रोमोसोम की और इसी को ट्राइसोमी कहते हैं। नाउ सेक्स क्रोमोसोम, ये इसमें 2 एग्जाम्पल देखे गए हैं जिसमें कि सेक्स क्रोमोसोम जिसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 2 सेक्स या एक पेयर कह सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम में देखा गया कि वहाँ पे सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम था, जबकि
क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम में देखा गया, वहाँ 3 सेक्स क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो यहाँ पे डिलीशन हो गया और यहाँ पे इंसर्शन हो गया, क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। तो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के एग्जाम्पल थे। अब हम इसे नेक्स्ट में देख सकते हैं। अब ये जो डिसऑर्डर थे, नाउ वी मूव टू द पेडिग्री एनालिसिस। हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू इन सभी डिसऑर्डर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र को हम देख सकते हैं। इसके लिए टूल्स दिए गए हैं कुछ पेडिग्री एनालिसिस के लिए। ये एक्चुअली एक एनालिसिस थी जिसमें ट्रेट का जनरेशन टू जनरेशन किसी भी फैमिली में हम ट्रांसफ़र को कैसे देख सकते हैं, इसके लिए टूल दिया गया एक, जिसमें कि कुछ सिंबल दिए गए, जैसे कि ये स्क्वायर है, ये मेल को डिनोट करेगा, सर्कल है फीमेल, रोटेटेड स्क्वायर है सेक्स अनस्पेसिफाइड को डिनोट करेगा। अगर इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो जो जितने भी स्क्वायर सर्कल हैं ये सभी कलर्ड होंगे, क्योंकि ये अफेक्टेड को शो करेंगे। अगर नॉर्मल होंगे तो ये कलर्ड नहीं होंगे। और अगर मेटिंग हो रही है इन इंडिविजुअल में तो वो सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। अगर मेटिंग हो रही है इन बिटवीन रिलेटिव्स तो उन्हें डबल लाइन से शो करेंगे, डबल लाइन से शो करेंगे। अगर इन पेरेंट के ऑफस्प्रिंग हैं और अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ, इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, उन्हें लेफ्ट से राइट की तरफ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर डॉटर का बर्थ पहले हुआ है तो पहले डॉटर को लिखेंगे, अगर सन का बर्थ पहले हुआ है तो पहले सन को लिखेंगे लेफ्ट में, और यही सीक्वेंस रहेगा। और ये डॉटर और सन अगर अफेक्टेड है तो उसे वर्टिकल लाइन से पेरेंट से जोड़ेंगे, फिर उसे कलर करेंगे क्योंकि ये अफेक्टेड है। अगर 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैं तो रोटेटेड स्क्वायर में 5 लिखेंगे, अगर 4 अनअफेक्टेड हैं तो 4 लिखेंगे। अब ये पेडिग्री एनालिसिस हम करते कैसे हैं, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगर फादर है यहाँ पे और मदर है, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन है तो सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। अगर फादर किसी भी डिसऑर्डर को शो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिकल सेल एनीमिया को शो कर रहा है या अफेक्टेड है इससे, तो इस स्क्वायर को कलर करेंगे। फिर जो इनसे जितने भी डॉटर और सन हैं उनको एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक होगी यहाँ पे के थ्रू डिनोट करेंगे। अगर डॉटर का बर्थ पहले हुआ है और वो नॉर्मल है तो इसमें कोई कलर नहीं करेंगे। अगर सन सेकंड नंबर पे इसका बर्थ हुआ है अगर और ये ट्रेट शो कर रहा है डिसऑर्डर का और ये अफेक्टेड है तो इसको कलर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर थर्ड में भी जो इस कपल की तीसरी चाइल्ड अगर डॉटर है और वो भी अफेक्टेड है तो उसको भी कलर से शो करेंगे। इस डॉटर की मेटिंग और अगर शादी किसी इंडिविजुअल से होती है और वो भी अफेक्टेड ट्रेट शो करता है, मतलब कि कोई डिजीज़ और दोनों ही पेरेंट में होगी, तो जनरली ये पॉसिबिलिटी है कि उनके सभी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो।
उनकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। अगर पहला बर्थ फीमेल का हुआ है तो पहले बर्थ फीमेल सर्कल फीमेल बनाएंगे। अगर सेकंड लास्ट में सन का बर्थ हुआ है तो सन को लिखेंगे। अगर सभी इंडिविजुअल अफेक्टेड हैं तो सभी को अफेक्टेड या कलर शो करेंगे, या यहाँ पे लिख सकते हैं इन्हें रोटेटेड स्क्वायर बना के वहाँ पे 4 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पेडिग्री एनालिसिस की जाती है। अब हम कैसे चेक कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस को? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर को लेंगे, जिसमें कि हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया है। दोनों ही रिसेसिव ट्रेट हैं, ये रिसेसिव डिजीज़ हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मेल अफेक्टेड रहेगा और फीमेल नॉर्मल होगी तो ये असल में होता क्या है? अगर मेल हीमोफीलिया से अफेक्टेड है, क्योंकि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है और मेल के पास सिर्फ एक एक्स प्रेजेंट होता है, तो मेल इजली अफेक्ट हो जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि 2 एक्स होंगे। तो मेल सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं हीमोफीलिया से। अगर फीमेल नॉर्मल है तो यहाँ पे दोनों गैमेट और जितने भी गैमेट फॉर्मेशन होंगे वो सभी नॉर्मल गैमेट होंगे, नॉर्मल एक्स कंटेनिंग गैमेट होंगे। जबकि जो मेल से जितने भी गैमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं वहाँ पे 50% चांसेस होंगे कि वो हीमोफिलिक ट्रेट को शो कर रहे हैं, और 50% गैमेट जो होंगे वाई जिनके पास होगा वो नॉर्मल गैमेट होंगे। अब जिसका फ्यूज़न वाई से होगा तो क्योंकि यहाँ से x नॉर्मल आ रहा है और y भी यहाँ से नॉर्मल आ रहा है, तो 50% जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो नॉर्मल होंगे, और 50% ऑफस्प्रिंग जो गर्ल होगी, क्योंकि गर्ल में दोनों ही क्रोमोसोम x होते हैं, सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम x होते हैं, और मेल से इनके पास अफेक्टेड x आएगा। तो मेल से क्योंकि एक एक्स अफेक्टेड आ रहा है तो जो फीमेल होंगी वो एज ए कैरियर शो होंगी। फीमेल होंगी वो एज ए कैरियर ट्रेट शो करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम एक और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अगर मदर और फादर दोनों ही हीमोफिलिक ट्रेट शो कर रहे हों तो होता क्या है इसमें? अगर मदर और फादर दोनों ही हीमोफिलिक ट्रेट शो कर रहे हों तो एक्स पर हीमोफीलिया रहेगा, और वाई क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है तो सिर्फ एक्स पे शो होगा हीमोफीलिया। अगर मेटिंग होती है मेल और फीमेल की और फीमेल के दोनों एक्स अफेक्टेड है हीमोफिलिक से, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? हम इस पुनेट स्क्वायर के थ्रू ये समझ सकते हैं कि जो गैमेट फॉर्मेशन होगा ये दोनों हीमोफिलिक हैं। फीमेल की जो क्रॉस होता है दोनों के पास 100% चांसेस होंगे कि दोनों ही एक्स हीमोफिलिक ट्रेट को शो करेंगे। तो यहाँ पे जो फीमेल से जितने भी एक्स आए हैं वो फीमेल शो करेंगे, और जितने भी गैमेट मेल से आए हैं वो 50% तो हीमोफिलिक होंगे और 50% नॉर्मल होंगे। यहाँ पे मेल को रख देते हैं, इस साइड फीमेल रख देते हैं। तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ ऑफस्प्रिंग विद नॉर्मल
ट्रेड एंड विथ हीमोफिलिक ट्रेड। तो यहाँ पे हम देखते हैं जितने भी फीमेल रहती हैं वो सभी अफेक्टेड रहती हैं, क्योंकि मेल का एक्स अफेक्टेड है और फीमेल के दोनों ही एक्स अफेक्टेड है। तो कोई भी एक्स मिलेगा, क्योंकि फीमेल तभी बनेंगी जब उनके पास दोनों ही एक्स प्रेजेंट हो। तो क्योंकि यहाँ पे 3 एक्स दिखाई दे रहे हैं और तीनों ही एक्स अफेक्टेड हैं, तो 100% फीमेल जो रहेंगी वो अफेक्टेड ट्रेड शो करेंगे, और जितने भी मेल हैं वो भी अफेक्टेड ट्रेड करेंगे, क्योंकि मेल से एक तो वाई मिल जाएगा, लेकिन जो फीमेल से दोनों गैमेट मिलेंगे वो दोनों ही गैमेट हीमोफिलिक ट्रेड के होंगे। तो यहाँ पे मेल भी अफेक्टेड होगा। तो जो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल के दोनों अफेक्टेड इंडिविजुअल के सभी ऑफरिंग अफेक्टेड होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिकल सेल एनीमिया। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।